Good morning, everyone. In the chapter 5, in the chapter 5, exercise 5.5, question number 1 was completed. So, today we will start question 2 of exercise 5.5. So, what is question 2 of that exercise? Complete the following table of patterns. You have to complete this table. In this table, you can see here some patterns are given to you in the form of algebraic expressions 2n, 3n minus 1, 4n plus 2, 5n minus 2 and 6n plus 1. Okay. In these patterns, you can see the variable is n, whose value changes every time. Okay. For the particular pattern 2n, or you can say rule for some particular pattern, I have marked your present Lakshya. I have marked your present. Okay. And 2, 3, 4, 5, 6, 1 and 2, these all are constants. You can see operations are between there, so all these are algebraic expressions. So in the first column expressions are given to you, and in the फॉरवर्ड कॉलम्स जो 6 कॉलम्स आगे आपको दिए हुए हैं उसमें आपको टर्म्स दी हुई हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म एंड 50th टर्म. मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर दीज टर्म्स फॉर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये एक्सप्रेशंस जो आपको दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है कि 2n के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट पैटर्न क्या होगा, इस पैटर्न में सेकंड क्या होगा, पैटर्न में थर्ड टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी, 20th टर्म क्या होगी एंड 50th टर्म क्या होगी. तो फॉर दैट यू कैन सी n की वैल्यू यहाँ है 1, बिकॉज पैटर्न में फर्स्ट हमें फाइंड करना है. पैटर्न में सेकंड टर्म क्या होगी वो n इक्वल्स टू 2 से फाइंड करेंगे. थर्ड है तो n इक्वल्स टू 3, 10th है तो n इक्वल्स टू 10, 20th है तो n इक्वल्स टू 20 एंड 50th है तो n इक्वल्स टू 50. द सेम थिंग वी हैव डन इन द क्वेश्चन 1. वहां पे 10, 20 एंड 50 ओनली 3 वैल्यूज दी हुई थी n की. यहाँ आपको 6 वैल्यूज दी हुई है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज यू हैव टू सॉल्व द expressions. And you know how to solve these expressions if variables value is given. वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है तो हम वो वैल्यू इस इन एक्सप्रेशंस में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं इजीली. सो देखिए 2n के लिए 2, 4, 6 3 कॉलम्स की वैल्यू आपको दी हुई है. कुछ कॉलम्स की वैल्यूज यहाँ पे आपको दी हुई है, कुछ की ब्लैंक है, वो वी हैव टू फाइंड. ओके. So for n is equals to 10, we have to find the value of 2n. So how will we find? 2n means 2 into n. Yes, very good Jatin. So 2 into n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 10. So 2 tens are 20. So 20 will be the value. Students, you have to give me reply hand to hand. Okay? आप साथ में रिप्लाई देते चलिए मुझे. Yes अक्षिता, very good. अक्षिता, it will not be 60. 60 नहीं आएगा यहाँ पर. 20th n is equals to 20 यानी 2 into n means 2 into n की वैल्यू है अब 20. So 2 into 20 will be 40. Then 2 into n again. Here you can see in the sixth column the value, yes, it is 100. The value of n is 50 and 2 into 50 will be 100. So these are the values. Very simple. You have to just put the value of variable and find the value of the expression. Okay. In the second expression 3n minus 1 value for n is equals to 1 is given, that is 2. We have to find for n is equals to 2. So 3 into n minus 1. I have just opened the term 3n means 3 into n minus 1 as it is. Yes, 5. Very good. 3 into n is 2 minus 1. 3 2s are 6 minus 1. यहाँ देखिए मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ. First we have to solve the multiplication, so I am solving multiplication here. Then in the third column n is equals to 3. And in 3n minus 1 will be 3 into 3 minus 1. 3 3s are 9 minus 1, that is 8. Yes, very good students. Yes, next will be 69. Let us check 3 into n minus 1. 3 into 20 minus 1, that is 60 minus 1, and it will be 59. Okay. 4n plus 2. You can see value of n is equals to 1 in the first column. यहाँ find कीजिए 4 into n plus 2. 4 into 1 plus 2, 6. Yes, very good. 4 plus 2, that is 6. The value is 6. Then for n is equals to 3, 4 into n plus 2, 4 into 3 plus 2,
4 3s are 12 and 12 plus 2 will be 14. Yes, very good students. n is equals to 10, 4 into n plus 2, 4 into n वैल्यू है यहाँ पे 10 plus 2. First solve this multiplication. 10 4 is 40 and 40 plus 2 will be 42. Okay. Then 4 into n plus 2. Here you can see n की value 50 है तो 4 into 50 plus 2. It will be 200 plus 2 and the answer will be 200. Yes, very good. Then for the fourth expression 5n minus 2, इसे अगर मैं simplest करके लिखूंगी then it will be 4 into n minus 2. In the third column you can see n is equals to 2, so put the value of n here. 5 into 2 minus 2, 5 2s are 10 minus 2, that is 8. Yes, good students. Then 5 into n minus 2 again. 5 into, यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 minus 2, so it will be 50 minus 2 and the answer is 48. Very good. Yes, 19 किसका आंसर आ रहा है प्रदीप? Whose value is 19? 5 into n minus 2. 5 into, in the last column you can see n is equals to 50. 5 into 50 minus 2. So it will be 5 into 50 will be 250. Not 198 Anant. 250 minus 2, that is 248. 198 कैसे आ रहा है बेटा आपका? Yes, it will be 248. Okay. 6n plus 1 में देखिए 6 into n plus 1. Here n की value you can see 2. तो 6 2s are 12 and 12 plus 1 will be 13. Yes. Then for n is equals to 3, let us find the value of 6n plus 1. Put the value n is equals to 3 in the expression and it will be 19. Okay, ये आंसर आ रहा था प्रदीप का 19. Good. Then n is equals to 20. 6n plus 1. 6 into n plus 1. 6 into 20 plus 1. 6 into 20 will be 120 and 121 will be the answer. Then 6 into n plus 1 again. N is equals to 50. 6 into 50 plus 1. 300 plus 1, that is 301 is the answer. So you can see the table is really very simple. Yes students, good. So thus your table is completed now. What we have done, we have just put the value of variables in the given expressions for the respective columns. ठीक है, and we have find the values. बेटा कॉपी में आपको इसी तरीके से करना है, सॉल्व करके दिखाना है. बुक में जो कॉलम्स आपको भरे हुए दिख रहे हैं बॉक्सेस, दे आर फिल्ड ऑलरेडी, बट जो हमें फिल करने हैं वो आपको सॉल्व करके दिखाने हैं. ओके, सो thus our syllabus is completed today. Chapter 5 is also completed. So मिड टर्म सिलेबस में आपके चैप्टर 1 इंटीजर्स, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे. सो आवर सिलेबस इज कंप्लीटेड टुडे. नाउ वी विल स्टार्ट द रिवीजन. सो लेट अस स्टार्ट नाउ द रिवीजन ऑफ चैप्टर 1. ओके, so first topic is addition and subtraction of integers. What are the rules how to add or subtract the given integers? देखिए, when the integers which are given their signs are same. जो इंटीजर दिए हुए होते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके साइन अगर सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम? एडिशन. ऑपरेशन कौन सा होता है? एडिशन का. ठीक है. अगर उनके साइन ऑपोजिट या डिफरेंट होते हैं तो वेट, अगर उनके साइन थोड़े ऑपोजिट या डिफरेंट होते हैं then we have to subtract the given integers. Okay, so only two operations will be there. Obviously अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उनके बीच में या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, बट आपको क्या देखना है कि दोनों ही जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनके साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर सेम साइन है मीन्स दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है तो ऐड करना है, और ऑपोजिट साइन है यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना है. सेकेंड चीज, what will be the sign in the answer? आंसर में कौन सा साइन आएगा? तो नंबर विच इज बिगर, द साइन कम ऑफ दैट नंबर. जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा आंसर में. साइन का जो बिगर डिजिट के साइन का जो ये प्रोसेस है, रूल है, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होता है.
आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी तो यही साइन आता है जो नंबर बड़ा होता है। नहीं, उसमें बिगर साइन, बिगर डिजिट नहीं देखी जाती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। बिगर डिजिट हमें देखनी होती है सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ओके, सो व्हाट आर द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? द गिवन इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन। अगर उनके साइन सेम होते हैं तो आंसर में प्लस साइन आता है, और अगर उनके साइन ऑपोजिट होते हैं तो आंसर में माइनस साइन आता है। सेम साइन यानी या तो वो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे, और ऑपोजिट साइन यानी एक प्लस और एक माइनस। ओके, सो अगर मैं प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करूंगी या माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी, इट विल बी प्लस रिजल्ट में, एंड और अगर एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिजल्ट में माइनस साइन। सो इन दोनों ही रूल्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज, चार तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। 4 प्रॉपर्टीज आर देयर: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं यहाँ पी क्यू आर 3 इंटीजर्स ले रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? इफ वी ऐड, multiply or subtract two integers, in the answer we will again get the integer. अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें या माइनस करें तो आंसर जो आएगा उनका वो भी एक इंटीजर होगा। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर को आप डिवाइड करो तो इंटीजर ही मिल जाए, फ्रैक्शन भी मिल सकता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है ये, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। इसमें वी हैव टू चेंज द ऑर्डर्स ऑफ गिवन इंटीजर्स एंड द आंसर विल बी सेम आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर स्टिल। ओके, p प्लस क्यू है, यहाँ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। p प्लस क्यू को मैंने q प्लस p कर दिया, q और p का ऑर्डर चेंज कर दिया एक दूसरे से, फिर भी उनकी वैल्यू सेम होंगी, वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स द वैल्यू विल बी सेम, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग करनी होती है आपको इंटीजर्स की। पहले, सेकंड और थर्ड इंटीजर की ग्रुपिंग की है। अगर मैं इस ग्रुपिंग को ना करके फर्स्ट और सेकंड इंटीजर की ग्रुपिंग कर दूं तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, यहाँ देखिए Q और R की ग्रुपिंग की हुई है, बट अगर मैं P और Q की ग्रुपिंग करूं तो भी वैल्यू इक्वल ही आएगी, यानी कि ग्रुपिंग चेंज करने से वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सेम इज विद दी मल्टीप्लीकेशन। पहले Q और R का मल्टीप्लीकेशन किया है, P को बाहर रखा है, देन P और Q का मल्टीप्लीकेशन किया है, R को बाहर रखा है, तो भी दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एज इट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड नॉट फॉर दी डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? Distributive property में you can see three integers are given. So in the distributive property you can see three integers are given to you, p, q and r. But what is the difference between associative and distributive property? In the associative property you can see only one operation is given in one time. आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में भी इस तरीके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि तीन इंटीजर्स हैं मैम, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं या कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटा एक बार में एक ही ऑपरेशन आएगा। इस पूरी प्रॉपर्टी में देखिए सिर्फ एडिशन का ऑपरेशन है, नेक्स्ट पूरी प्रॉपर्टी में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है। बट इन दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन कम्स टुगेदर, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस इन एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसी के बेस पे वैल्यू भी चेंज हो जाती है। वहां मैंने ग्रुपिंग की बात की थी, यहाँ देखिए इसे अगर मैं ओपन करके लिखूंगी तो जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीजर, उसको पहले ब्रैकेट के फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी p इंटू क्यू, पुट द ब्रैकेट, देन प्लस साइन इज बिटवीन देयर, देन p इंटू आर, सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है इंटीजर को जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी p इंटू आर। ओके, तो पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पुट प्लस साइन, जो भी साइन दिया हुआ, माइनस साइन दिया हुआ होगा तो माइनस साइन आएगा, बट अगर प्लस साइन आपको गिवन है तो प्लस साइन आएगा। ओके, सो यहाँ देखिए इसको ओपन करके लिखा है, वन ब्रैकेट को टू ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, बट इसकी नेक्स्ट
सिचुएशन क्या है, अगर आपको ओपन करके गिवन हो क्वेश्चन में, ओपन करके दिया हुआ है P इंटू क्यू प्लस P इंटू आर, तो आपको उसको मर्ज करके सॉल्व करना है, दोनों ब्रैकेट्स को एक ब्रैकेट में मर्ज करना है इस तरीके से, P इंटू क्यू प्लस आर। P इंटू क्यू आप देख सकते हैं दोनों में ही कॉमन है ना, P और मल्टीप्लीकेशन साइन दोनों में कॉमन है, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। फिर ब्रैकेट में अंदर क्या क्या बचेगा, ओनली Q प्लस और R, तो Q प्लस R विल बी इन दी ब्रैकेट। ओके, मैं दोबारा समझा देती हूँ। P इंटू क्यू प्लस आर में आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट गिवन है, तो इसको ओपन करके लिखना है अगर इस फॉर्म में दी हुई हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर आपको ओपन फॉर्म में दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू मर्ज इट, जिस भी फॉर्म में आपको दी हुई होगी उसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देन एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? सो टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर जस्ट ऑपोजिट इट्स साइन, जो भी नंबर आपको गिवन है जिसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उसके नंबर को ऑपोजिट कर दीजिए। If plus sign is given, then convert it into minus sign, and if minus sign is given, then convert it into plus sign. Okay, then you will find its additive inverse. Additive identity है जीरो, जीरो additive identity क्यों है? Because बेटा जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उसका कोई एडिटिव इनवर्स नहीं होता जीरो का। जीरो ही ले लीजिए आप चाहे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो को प्लस मानोगे तो माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस मानोगे तो प्लस जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो का कोई एडिटिव इनवर्स नहीं होता, वो खुद ही खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, क्यों? क्योंकि किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी है ना तो एडिशन की बात करेंगे, किसी भी इंटीजर में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर अगेन वही इंटीजर आता है, यानी इंटीजर में जीरो ऐड करने से उस इंटीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही एग्जाम्पल में अगेन मुझे सेम इंटीजर मिल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है आपको? जस्ट इंटरचेंज पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विदाउट चेंजिंग द साइन। साइन चेंज नहीं करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, यहाँ मैंने साइन चेंज किया है ना, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स। बट व्हेन वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डोंट चेंज द साइन विदाउट चेंजिंग द साइन, ये मेन चीज है। बच्चे साइन भी चेंज कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजिशन चेंज करनी है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देन multiplicative identity is 1. Why is it so? Because whenever I multiply any integer with 1, I will get the same integer again. यहाँ देखिए -9 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन मुझे सेम इंटीजर मिल गया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन आई हैव गॉट दी सेम इंटीजर। मतलब कि अगर इन दोनों इंटीजर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंटीजर्स पे, वही मिल रहे हैं मुझे। दैट इज वाई 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देन ये नोट मैं आपको बाद में समझाऊंगी व्हेन वी विल डू दी क्वेश्चंस। दैट वाज दी फुल थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ practice questions. These questions are must, you have to do them. Okay, तो complete the table. First question है you have to complete the given table. ये इंटीजर्स आपको गिवन है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इन द लेफ्ट साइड एंड इन द राइट साइड। लेफ्ट साइड में यू हैव टू फाइंड देयर एडिटिव इनवर्स एंड इन द राइट साइड यू हैव टू फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो अभी मैंने आपको बताया एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का क्या प्रोसेस होता है। यस, गुड अनंत। सो इफ द इंटीजर इज 3, ये आप दे सकते हैं प्लस है ना, मैंने आपको बोला था जस्ट चेंज द साइन, ऑपोजिट द साइन। प्लस को किस में कन्वर्ट करना है? माइनस में, वैल्यू सेम रहेगी 3। यस, गुड। -2 है, 2 नेगेटिव दिया हुआ है तो +2 हो जाएगा, वेरी गुड। ये -11 वाला आपको खुद करना है, मैंने डैश लगाया हुआ है। ओके, -4, इसका कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स फॉर -4? यस, वेरी गुड छवि, इट विल बी -4। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इफ यू विल सॉल्व दिस, यू हैव टू जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट ना। आप क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ माइनस साइन देखते हैं तो प्लस साइन लगा देते हैं कि +4 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। नो, दैट इज रॉन्ग। आपको ये ब्रैकेट ओपन करके दिखाना है, एंड व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट द रिजल्ट विल बी +4। ओके, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4 का एडिटिव इनवर्स बताना है, तो प्लस का माइनस में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी -4। देन -21, ये 16 आपको खुद करना है बेटे, जहां ये डैश आपको दिख रहे हैं ना, यू हैव टू डू योरसेल्फ इन द क्लास वर्क ओनली।
टुडे आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, अब से कोई होमवर्क नहीं मिलेगा टिल एग्जाम। बस आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगी, कुछ मैं करवा रही हूँ इस टेबल में, कुछ आपको खुद को करना है, ठीक है। टेबल आपको एक ही बनानी है, अलग अलग टेबल नहीं बनाएंगे, उसी में सॉल्व करने सारे। -21 के लिए इट विल बी 21 बिकॉज यू कैन सी इट इज नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। 18 इज पॉजिटिव, तो उसे किस में चेंज करना है, यस वेरी गुड छवि, -18, ओके। देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखिए, फॉर द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 8 का आपको खुद फाइंड करना है, 1/9। मैंने इसमें आपको बताया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को। सो फॉर द रेसिप्रोकल छवि इट विल बी 9/1 बेटा, 9, ओके। बेटा ये 9 है, 4 नहीं है, इट विल बी 9। 1/9 अगर आपको दिया हुआ है नंबर, तो उसके लिए इफ यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन इट विल बी 9। मैंने इंटरचेंज कर दिया, 9 डिनोमिनेटर में था ना, तो वो न्यूमरेटर में आके होल नंबर बन गया, क्योंकि अपॉन 1 यानी सिंपल 9, ओके। -1/7 यू हैव टू डू योरसेल्फ। 5 का अगेन व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यस गुड अनंत, इट विल बी 1/5। 5 आपको गिवन है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। देन -19 आपको खुद करना है, -1/64, what will be the multiplicative inverse for that, -1/64, यस पहले तो 1/64 का इनवर्स कीजिए, तो सिंपल इट विल बी 64, 64/1 इज सेम एज 64, उसको मैंने 64 ही लिख दिया डायरेक्ट। ये माइनस साइन एज इट इज आएगा, तो इट विल बी -64। देखिए 64/-1 आप लोग मुझे बता रहे हैं 64/-1, आपके हिसाब से ये सही है, और ये सही भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस आप देख सकते हैं न्यूमरेटर के साथ था, तो अब वो डिनोमिनेटर में आ गया है। बट आप रेशनल नंबर जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा ये पढ़ेंगे कि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ कभी नहीं लगाते हैं, हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है। तो शिफ्ट दैट माइनस साइन इन द न्यूमरेटर, तो इट विल बी -64, तो आपको सिंपल -64 लिखना है, ठीक है। माइनस साइन डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाया जाता है, वो आप कैसे इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, वो मैं जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स तब आपको बताऊंगी। सो इट विल बी सिंपली -64, ओके। -20 के लिए, देखिए 20 का हो जाएगा 1/20 रेसिप्रोकल, और माइनस साइन विल कम एज इट इज, सो इट विल बी -1/20, ओके। यहाँ देखिए मेन डिफरेंस क्या है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में मैंने साइन चेंज किए हैं, आई हैव चेंज्ड ओनली साइन, नॉट दी वैल्यूज, वैल्यू चेंज नहीं की है, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, बस इसका प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने वैल्यूज चेंज कर दी, साइन चेंज नहीं किए। 1/9 इसकी वैल्यू चेंज होकर के क्या होगा, 9, आप देख सकते हैं 1/9 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो 1/9 को मैंने 9 में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ। 1/9 पॉजिटिव है, तो 9 भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ देखिए -1/64 और 64 दोनों की वैल्यू डिफरेंट है ना, वैल्यू चेंज हो गई बट साइन सेम है। तो दैट इज द मेन डिफरेंट इन द एडिटिव इनवर्स, वी जस्ट चेंज द साइन नॉट द वैल्यू, बट reversely if we see in the multiplicative inverse we just change the value not the sign, okay. So this was all for today, remaining revision we will do tomorrow students, no homework for today। बस आपको ये जो डैश के मैंने आपको दिए हुए हैं ना टेबल में, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं इन दी क्लास वर्क ओनली, ये होमवर्क नहीं है आपका, क्लास वर्क ही है। तो दिस टेबल इज स्टिल इनकम्प्लीट, यू हैव टू कंप्लीट इट इन क्लास वर्क, एंड द वन टेबल यू हैव टू मेक ओनली, दो अलग अलग टेबल नहीं बनानी है। थैंक यू।